one unique facet of your personality. As Martha Nussbaum, a very popular animal welfare activist, she said that a society is known by how it treats its animals. And I mean, I would like to tell the audience that ma'am is a avid animal rescuer. She has that love for the animals. And ma'am, please tell us about what drives you to care for that little bit you can share with the audience. So honestly, it again begins from my family. My father had a lot of dogs then, and moreover, the love came from there. I think in my 4-5 generations, we have been having pets, or rather any animal that हमारे जो घर पे कोई भी आ जाए ना, इंसान आ जाए या कुत्ता बिल्ली जो भी आ जाए, it will never go empty stomach. That is the thing. Empty-handed, yeah. Yeah. So my parents have started that since a long time. जो हम में आ गया, we have a unconditional love for these animals. Unconditional, I tell you. My life's decisions are most of the time driven because of my pets, because they are a part of my family, and I take all decisions depending upon their welfare first. And slowly and steadily, I mean, I used to do that since college, where I used to go on rescuing छोटे मोटे. मेरे घर के नजदीक ही एनिमल हॉस्पिटल है, छोटी मोटी चीजें करती थी, वहां जाके उनको ट्रीट कराती थी. And full fledged I started doing when I started earning. So I think that was when I adopted my first one, Tiba. I think he was a bigger inspiration. He allowed everyone to come in the house, get treated and get back. So slowly, steadily unse chalu hua wo, and touch wood till date I'm continuing. And I feel, my small message to everyone, even if you're not able to rescue any, even if you're not able to do anything, don't do things that you'll hurt an animal. Don't harm them. Yeah. कुछ नहीं करना है, मत करो. रोटी नहीं देनी, मत दो, बट उनको हार्म मत करो. जैसे अभी चेन्नई के फ्लड्स हो गए, और बहुत बार स्टॉर्म्स आते हैं, वाइल्ड फायर्स होते हैं. जाएंगे कहाँ वो? इतनी बारिश में जाएंगे कहाँ? जस्ट इमेजिन, हम लोग कुत्ते के बच्चों को उठा के फेंक देते हैं, मार देते हैं. वी विल नॉट डू फॉर वुमेन एंड हर चिल्ड्रन, राइट? सो व्हाई डू फॉर देम? तो थोड़ा सा स्पेस दे दो. वो ज्यादा नहीं मांगते, और अपने रास्तों पे थोड़े महीनों बाद चले जाते हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, वो चले जाते. सो how much ever we have, we can give it. So ma'am, before, I think you're rushing, you're pressed for time, so we'll conclude with just the last question. Sure. I'll just like to mention that ma'am has been awarded the 2022 Ahilya Bai Holkar National Award. Apart from that, she had also been interviewed at Humans of Bombay, Gaurav Arya show at Republic TV. And ma'am, your passion for skydiving, and you are a hot air balloon champion as well. So little bit about that. Yeah. And if you would like to add about sir, whatever you feel comfortable, because we would like to... Just a minute. I think that thing is cancelled for me. I just got a message. Okay. Just give me 30 seconds. 30 seconds. Okay. Sure, ma'am. So friends, it has been a really interesting this podcast with ma'am. We got to learn. You can shoot in your questions in the comment section till ma'am is done with it. Yeah. So ma'am, so we are. You have to rush, or should we? No. Should we conclude? No, we have done. I just that person. Yeah, we have time. So divine providence, the universe also wants us to listen to you. Yeah. So ma'am, building on to we would like to build on more on the animal welfare part, because that is something actually you can share some of your rescues and what more we can do. हम और society में जागरूकता पैदा करने के लिए जो थोड़ा सा लोगों के अंदर एक जो एंगर है, ये थोड़ा सा जानवरों को लेके, उसको हम काउंटर करने के लिए अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना दैट वी को एग्जिस्ट टुगेदर. हो ही नहीं सकता कि सिर्फ इंसान रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे. अब ये स्ट्रे जानवर कहाँ से आए थे? व्हाट हैपेंस इज पहले तो आई फील हमारी इंडी जो ब्रीड है वो लोगों ने बहुत ही क्या कहते हैं डिस्कार्ड कर दी है. पहले के जमाने में घर में वो स्ट्रे कुत्ते ही होते थे. हाँ, वो हमारे ही स्ट्रे बोलते. आई एम आल्सो सॉरी, आई एम कॉलिंग देम स्ट्रे. इंडीज ही होते थे. फॉरेन के ब्रीड्स होती नहीं थी. स्लोली स्टेडीली आ गई और ये डिस्कार्ड हो गई. और दूसरी चीज मतलब उनका स्टरलाइजेशन, उनका स्पेइंग या नसबंदी ना करना. गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एनिमल बर्थ कंट्रोल कैंप्स कराने होते हैं. तो बहुत बार वो चीज इग्नोर हो जाती है. इसके वजह से उनकी जनसंख्या बढ़ती है. तो ये जो है वो जो प्रॉब्लम्स है. और हम हमारा जैसे कचरा फेंकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट कॉज. जैसे आप अपना कचरा फेंकोगे, एक तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, उनको सर्वाइव होना है, उनको खाना चाहिए. और दूसरा हम ऐसे जो कचरे फेंकते हैं वगैरह, दैट इज द ओनली सोर्स फॉर देम. तो दीज आर
these are the root cause जिसकी वजह से ये चीजें हो गई है। अब लोग ये नहीं समझते कि अगर उनकी प्रॉपर टाइम पे, चलो अभी जो जितना डैमेज हो चुका है, अभी अगर आपके कम्युनिटी में कोई डॉग हो, तो अगर आप वो चाहते हो कि आपके अगल बगल गंदगी ना करे उस लोकेशन में, तो वहां पे उसके लिए खाना रखो। ही विल नॉट स्पॉइल द एरिया जहाँ वो खाना खाता है। ये बहुत ही कॉमन है, हम भी नहीं करते, उनका भी सेम है। तो जहां अगर वो आपको लगता है गंदगी करेगा, तो वहां उनके खाने रखो, पानी का बोल रखो या कुछ छोटे हुए बिस्किट दो, वो वहां पे दोबारा चीजें खराब नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, अगर आपको बच्चे वगैरह को दिखते हैं, बहुत सारे यहाँ पे एनिमल वेलफेयर है, बहुत सारे एनजीओज है, आप उनको दे सकते हो या फिर आप अडॉप्ट खुद कर सकते हो। और जैसे ही वो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दे, उसकी स्पेइंग करा दो। आई विल टेल यू, इट इज अ हाफ एन आवर का प्रोसीजर, बिकॉज मेरे सभी बच्चों की हो रखी है, मेरे जो घर में है। आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री होता है। या देखो, हमें चीजें पता नहीं होती, हमें रूल्स पता नहीं होते, इसलिए वी फील दे विल चार्ज अस। इवन इफ दे चार्ज, देयर बी बेयर मिनिमम जो आपके चीजें लगती है, जैसे गॉज वगैरह हो गया, एक्सपेंडेबल चीजें लगती है, तो शायद उसके लिए वो पैसे ले। और जो स्ट्रे डॉग्स की इम्यूनिटी इतनी मस्त और इतनी हाई होती है कि ऑपरेशन के बाद अगर आपको उनको सिर्फ 7 दिन आप उनकी केयर करो, 8वें दिन वो अपने पैर पे खड़ा रह के भाग जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड वंस यू न्यूटर द मेल्स एंड द फीमेल्स, पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। अब ये चीज हो गई, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट द एनिमल्स, यू नो, फॉर द एनिमल्स, नाउ फॉर द पीपल हु आर नॉट इनटू ऑल दिस, ओके। पहले तो मैंने वही बोला, आप उनको अगर मारोगे, उनको अगर खराब एक्सपीरियंस आया, तो जैसे लोग कहते हैं कि कुत्ते गाड़ियों के पीछे भागते हैं, है ना। 2 चीजें, पहले तो मजे के लिए भागते हैं, उनका वो नेचर है रन करना, हंट करना। और दूसरी चीज है कि अगर किसी गाड़ी के उसको मतलब हर्ट हुआ होगा कभी, हमारी भी साइकी होती है, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं कॉशियस रहता हूँ, तो उनका वो एक क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है, हो जाता है, वो भौंकेगे। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि यू नो देयर आर नो वाइल्ड डॉग्स, देयर आर नो डॉग्स व्हिच डोंट बाइट, देयर आर। जैसे हम लोगों में भी अच्छे और बुरे लोग हैं, उनमें भी अच्छे और आई वुड नॉट से बुरे, डिस्टर्ब्ड कुत्ते हैं, वो है प्रजाति, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीजें, तो जितना भी है, अगर आप उसको पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहो। बट बेसिक चीज तो आप हर एक के लिए पानी तो रख ही सकते हो। इतनी गर्मी होती है आजकल, फॉरगेट अबाउट डॉग्स, देयर आर सो मेनी बर्ड्स आल्सो। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अपना पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि जो स्पैरोज हम बचपन में देखते थे, इफ यू रिमेम्बर, दे आर नो मोर इन द सिटीज, नो मोर, यस, ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, cities. So it is because of all these things only. Try and keeping some or the other things. पानी रखो आपका, मैं नहीं कहती स्पेशली डॉग फूड है, कैट फूड लाओ, ये इतने अच्छे यू नो जानवर होते हैं, आप उनको कुछ भी खिलाओ वो खा लेंगे। तो अपने हिसाब से करो, और आपको लगता है कि कुछ नहीं है तो प्लीज उसको हर्ट मत करो। Imagine I have seen stories where a pregnant dog is hurt, she's killed, she's choked. क्या will you do that with a woman? No, you will never do it. She also goes through, she's also a woman, she also goes through the same pain in her birth. Yeah. जैसे हम किसी लेडी को डिलीवरी के बाद कोई अच्छा खाना देते हैं उसका ग्लूकोज बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, जस्ट इमेजिन वो फीमेल डॉग है, उसको तो खाना भी नहीं मिलता, वो बेचारी कहाँ जाती है घूमने। तो जितना छोटा मोटा हो सकता है करो, आई एम नॉट सेइंग डू कंप्लीटली, जितना थोड़ा बोया हो सकता है वो आप करो। और लास्टली एक चीज बोलना चाहूंगी मैं फॉर एनिमल वेलफेयर, may not resonate with everybody, but try reducing your non-veg consumption. I personally feel right. I was a non-vegetarian. I have literally moved from that to become a vegetarian to veganism also. मैं बहुत ही कम, मतलब मैं जैसे खाती थी पहले, बिकॉज बड़ा किया था, वैसे दिए था चीजें जैसे खाती थी, अभी तो इट इज ऑलमोस्ट जीरो फॉर मी, इट्स वंस इन अ ब्लू मून वगैरह, because I feel they also have an equal right to live. So whichever people can, अगर आप immediately छोड़ सकते तो छोड़ो, नहीं छोड़ सकते तो कंजम्पशन कम करो, या फिर ऑल्टरनेट चीजें, अगर आप खाना नहीं छोड़ सकते आप लेदर यूज करना छोड़ दो, बिकॉज इमेजिन किसी को मारा जाता है उनकी स्किन के लिए। धीरे धीरे चीजें करो, छोटी छोटी, nobody is saying you know one has to do things because of you know ethical reasons or whatever. आप छोटी छोटी चीजें करो. I would not impose on people, but do small things at a time. Absolutely, ma'am. That is such a treat to listen to you. Such wonderful things and variety of you know experiences and things you have ventured into.